नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे। So far we have learned that for two triangles to be congruent, 6 elements, that is 3 sides and 3 angles of the first triangle should necessarily be equal to 6 elements of the other triangle. But now we will learn some congruence rules for two triangles where only 3 pairs of corresponding equal parts are required. अभी तक हमने ये देखा है या सीखा है कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये जरूरी है कि पहले ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स, जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स आते हैं, वो दूसरे ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स के बराबर होना चाहिए, जैसा कि पिछली वीडियो में डिस्कस किया गया था। लेकिन अब हम कुछ कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स के लिए, जहां पर केवल ओनली 3 पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग इक्वल पार्ट्स आर रिक्वायर्ड। जहां पर हम केवल 3 पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग इक्वल पार्ट्स देखेंगे। अगर वो 3 करेस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। 6 एलिमेंट्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 3 इक्वल पार्ट्स हैं, अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो रिमेनिंग 3 पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से टोटल 6 एलिमेंट्स दोनों ही ट्रायंगल के बराबर हो जाते हैं। अब वो 3 मैचिंग पार्ट्स क्या हैं, उनको देखना पड़ेगा। पहला है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, जिसे हम शॉर्टकट में SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भी कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस रूल भी कहते हैं। यहाँ पर पहले ट्रायंगल की 3 साइड और दूसरे ट्रायंगल की 3 साइड की लेंथ अगर बराबर है तो ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमें एंगल्स को देखने की आवश्यकता नहीं है। Under a given correspondence, if 3 sides of one triangle are equal to 3 corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. इस सिचुएशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें बताया गया है कि इन ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ABC है और दूसरा PQR है। It is given that AB is 3.6 centimeter, BC is 7.5 centimeter and AC is 5.1 centimeter, whereas PQ is 7.5 centimeter, QR is 5.1 centimeter and PR is 3.6 centimeter. Examine whether the two triangles are congruent or not. If yes, write the congruence relation in symbolic form along with the criteria used. जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल के जो 3 साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है। Since AB is 3.6 centimeter, RP is 3.6 centimeter, this implies that AB is equal to RP. Similarly, BC is 7.5 centimeter and PQ is 7.5 centimeter. So this implies that BC of first triangle is equal to PQ of the second triangle. Similarly, CA is equal to 5.1 centimeter, QR is equal to 5.1 centimeter. This implies that CA is equal to QR. 3 sides of the first triangle are equal to the corresponding 3 sides of the second triangle and therefore these two triangles are
कांग्रुएंट। अब यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम पहले ट्रायंगल का नाम ABC लिखते हैं तो हमें दूसरे ट्रायंगल का नाम ध्यान से लिखना होगा। ये देखना होगा कि जो A है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है। हम A से B की तरफ जाते हैं, फिर B से C की तरफ जाते हैं, मीन्स 3.6 सेंटीमीटर और देन 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर R से P 3.6 सेंटीमीटर होगा और फिर P से Q 7.5 सेंटीमीटर होगा। अतः इस ट्रायंगल का नाम RPQ लिखेंगे अगर पहले ट्रायंगल का नाम ABC लिखते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है कि three sides of triangle ABC are equal to three sides of triangle PQR. So by side congruence criteria, the two triangles are congruent. From the above three equalities, we have the correspondence as A corresponds to R, B corresponds to P, and C corresponds to Q. हम उल्टा भी कह सकते हैं कि R corresponds to A, P corresponds to B, and Q corresponds to C. दोनों तरफ ही एरो ये इंगित करता है कि A corresponds to R and R corresponds to A. So triangle ABC is congruent to triangle RPQ. Example number 2. In the adjoining figure, AD is equal to CD. AB is equal to CB. Examine whether the two triangles are congruent. Yes, these two triangles are congruent because two sides which are equal are already given and third one is common in both the triangles. So it is automatically equal. In triangles ABD and CBD, we have AB of the first triangle is equal to CB of the second, AD of the first is equal to CD of the second, and BD is equal to BD common, and therefore these two triangles are congruent. Here A corresponds to C, B corresponds to B, and D corresponds to D, and therefore triangle ABD is congruent to triangle CBD. A का रिलेशन C से है, B का B से है और D का D से है, अतः ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर हम एक्टिविटी के थ्रू ऐसे दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें जिनकी साइड्स बराबर हों तो हम देखते हैं कि इनके एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, अतः ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। डेफिनेशन से, डेफिनेशन ये कहती है कि पहले ट्रायंगल के 6 एलिमेंट दूसरे ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स के बराबर हों तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ केवल 3 साइड ही देखना है क्योंकि 3 एंगल्स जो है अपने आप इक्वल हो जाते हैं, जो कि अंडरस्टूड है। इस क्राइटेरिया को हम साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंस रूल के नाम से जानते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। यहाँ पर 2 साइड्स और उनके बीच बनने वाला एंगल देखना है जिसे हम इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। अगर पहले ट्रायंगल की 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल की 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो तो ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्योंकि रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती हैं। अंडर ए correspondence, if two sides and included angle of one triangle are equal to two sides and included angle of the other triangle, then the two triangles are congruent. यहाँ पर जो मार्किंग दी हुई है कि जो सिंगल मार्किंग है वो सिंगल मार्किंग के इक्वल है, इट मीन्स ए बी जो है वो डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, और इन दोनों साइड के बीच बनने वाला एंगल पहले ट्रायंगल में बी है और दूसरे में ई है, ये दोनों ही बराबर हैं। तो इस क्राइटेरिया के तहत ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। पहले ट्रायंगल का नाम ABC है तो दूसरा DEF होगा।
एग्जाम्पल के माध्यम से इस क्राइटेरिया को एलोबरेट किया गया है। चेक वेदर द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अंडर एंगल साइड एंगल। Example is given below are measurements of some parts of two triangles। यहाँ पर पहले ट्रायंगल ABC में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और दूसरे ट्रायंगल DEF में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर पता करना है एग्जामिन वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट बाय यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। जैसा कि हम फिगर्स में देख रहे हैं कि पहले ट्रायंगल की जो AB साइड है वो दूसरे ट्रायंगल की EF के बराबर है, दोनों ही 8 सेंटीमीटर की हैं। देन BC 5 सेंटीमीटर है, यहाँ DE 5 सेंटीमीटर है और इन दोनों साइड के बीच बनने वाला जो एंगल B है और यहाँ पर इन दोनों साइड का जो इंक्लूडेड एंगल है वो E है, दोनों ही इक्वल है। अतः ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अंडर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब हमें ये देखना है कि कौन सा एंगल या कौन सी साइड किसको करस्पॉन्ड करती है ताकि उसे सिंबॉलिकली करेक्ट लिखा जा सके। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम AB जो साइड AB है AB से BC की तरफ आते हैं तो यहाँ FE से ED की तरफ आएंगे, यही करस्पॉन्डेंस है। तो अगर हम पहले ट्रायंगल का नाम ABC लिखते हैं तो दूसरे ट्रायंगल का नाम FED लिखना होगा और ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। नाउ थर्ड क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल congruence rule or congruence criteria under a correspondence if two angles and included side। यहाँ पर साइड बीच में हुई लिखी हुई है, लेफ्ट साइड में एंगल और राइट साइड में एंगल है तो ये इंक्लूडेड साइड कहलाएगी। इन दोनों ही एंगल्स में इंक्लूडेड साइड है, कॉमन साइड है। Under a correspondence if two angles and included side of one triangle are equal to two angles and included side of the other triangle then the triangles are congruent। सिंबल के माध्यम से बताया गया है कि एंगल Q जो है एंगल M के बराबर है, QR साइड MN साइड के बराबर है और R एंगल N के बराबर है। और अगर ऐसा है तो ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और इन्हें सिंबल के फॉर्म में अगर ट्रायंगल पहले ट्रायंगल का नाम PQR लिखते हैं तो दूसरे ट्रायंगल का नाम LMN होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एंगल Q है वो एंगल M को करस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल R एंगल N को करस्पॉन्ड कर रहा है एंड देयरफॉर P विल करस्पॉन्ड टू L। आइए देखते हैं इस सिचुएशन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से। Check whether the following triangles are congruent under angle side angle congruence rule. If yes, write the congruence between them in symbolic form. In triangles ABC and PQR, we have angle B is equal to angle R. Each is 35 degree. BC is equal to RQR कुछ भी कह सकते हैं, दोनों की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। Angle C is equal to angle Q, both are 25 degree each। यहाँ देखते हैं कि दो एंगल और जो इंक्लूडेड साइड है वो फर्स्ट ट्रायंगल की वो दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल की बराबर हैं एंड देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? अगर ट्रायंगल पहले ट्रायंगल का नाम अगर ABC लिखते हैं तो दूसरे ट्रायंगल का नाम उसी करस्पॉन्डेंस में क्या लिखा जाएगा? A के बाद B आए हैं मीन्स 35 डिग्री पे आए हैं, फिर 25 डिग्री पे आए हैं तो उसी तरीके से यहाँ PRQ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो B है वो B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? R को, और BC साइड जो है वो RQ को एंड C जो है वो Q को करस्पॉन्ड कर रहा है। अतः आर्डर जो है वो लिखने का वो ये होगा। अगर इसका नाम चेंज कर दिया जाता है तो फिर इसका भी नाम चेंज हो जाएगा उसी ऑर्डर में।
नाउ द फोर्थ क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल का, वो राइट हाइपोटेन्यूज साइड है, जिसे हम RHS कहते हैं। ये जो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है वो दो राइट ट्रायंगल्स के लिए है, जैसा कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ राइट, राइट मीन्स 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज भी है और एक साइड है। अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो उनमें अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड पहले ट्रायंगल की और हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरे ट्रायंगल की बराबर है, इक्वल है, तो वो दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। When the hypotenuse and one side of one right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the other right angle triangle, the right angle triangles are congruent. 90-90 पहले से ही इक्वल है क्योंकि ये राइट ट्रायंगल्स हैं। हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज QR है और एक साइड AB है जो कि 4 सेंटीमीटर की है, यहाँ पर भी एक साइड उसकी 4 सेंटीमीटर की है, and therefore these two triangles are congruent under RHS congruence rule. Here angle B is equal to angle P, each is 90 degree, hypo AC is equal to hypo RQ, each is 8 centimeter, and AB is equal to RP 4 centimeter, and therefore triangle ABC is congruent to triangle। अब यहाँ पर ABC लिखा है तो पहले AB मीन्स 4 सेंटीमीटर को लिखा है, तो यहाँ पर RP होगा और फिर Q होगा, ये लिखने का ऑर्डर है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने जो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स बताए गए हैं, जिसमें पहला है साइड साइड साइड, देन साइड एंगल साइड, देन एंगल साइड एंगल, और लास्ट RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया आपने समझा होगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।